خاطر جو ہم سکون اور چین کی نیند سوتے ہیں، ہمیں فوجیوں کے بوٹ پالش کرنا بھی منظور ہے، ہمیں ان کی استری کرنا بھی وردی پر منظور ہے۔ ہم اس کو برا نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم انہیں گارڈز نہیں مانتے، ہم انہیں چوکیدار نہیں مانتے، ہم انہیں اپنا بھائی مانتے ہیں، ہم انہیں اپنے گھر کا فرد مانتے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے جانیں دے رہے ہیں، قربان ہو رہے ہیں اور اپنی جان آفری کے سپرد کر رہے ہیں۔ سنیے قمر باجوہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کٹ گیا، لیکن جب میں صبح اٹھتا ہوں تو پھر میں بھرپور ارادے کے ساتھ اٹھتا ہوں کہ میں نے کام کرنا ہے اور ان بچوں کا خون تاکہ رائے گاہ نہ جائے۔ وی آر سیکریفائزنگ دا بیسٹ فار دس نیشن۔ ہم اس ملک کے لیے بہت خوبصورت 18-19 سال کے جوان قربان کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ سمندر پار بیٹھے جو کافی عرصے سے ملک سے باہر ہیں، فوج کو گالیاں دیتے ہیں، ملک کو گالیاں دیتے ہیں، ملک کے توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب تک ہمارے پاس ایسے بہادر ہیں اس ملک کو کوئی آنچ نہیں آئے گی، اور عنقریب ان تک بھی قانون کی گرفت ہوگی۔ ہم نے تہیہ کیا کہ پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ ہم کامیاب ہو کے رہیں گے۔ پاکستان میں آئین اور قانون کی عملداری ہوگی، اور اس کو ہم انشور کریں گے کہ پاکستان ایک یہ وزیر داخلہ کا بیان نہیں ہے، کسی ایس ایچ او کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، اور کوئی سیاسی یا پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ جملے ذرا غور سے سنیے گا۔ ان قریب ہم سمندر پار دہشت گرد تک بھی پہنچ جائیں گے۔ جب آرمی چیف نے یہ کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سنجیدگی سے اس کو لیا جائے۔ یہ چودھری نثار کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ ہم نے آج بات کی ہے، برطانوی سفیر کو بلا کر اس سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اپنے درد کا اظہار کیا ہے۔ اب لندن کو بھی سوچنا ہوگا، برطانیہ کو بھی سوچنا ہوگا کہ اگر اس کو اپنا مقام ممتاز رکھنا ہے دنیا میں تو اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دے کسی دوسرے ملک کے خلاف یہ کہنے کے لیے کہ وہ مٹا دیا جائے گا۔ اگر برطانیہ سے یہ آواز اٹھے گی تو برطانیہ اس کا ذمہ دار ہے، انگلینڈ اس کا ذمہ دار ہے اگر یہ آواز وہاں سے اٹھ رہی ہے کہ پاکستان کو مٹا دیا جائے گا، خاکم بدین، پاکستان مٹ جائے گا، خاکم بدین، پاکستان تباہ ہو جائے گا، خاکم بدین۔ یہ آواز اگر وہاں سے اٹھ رہی ہے تو اب برطانیہ کو سوچنا ہوگا، اور یہ چودھری نثار نہیں سوچوا رہے ہیں، یہ حکومت نہیں سوچوا رہی ہے۔ چودھری نثار جو آج ان کی بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم بڑے آپ کے مداح ہوا کرتے تھے، لیکن آپ تو ایک ہی ملاقات میں ڈھیر ہو گئے، شیر بنتے تھے آپ تو ایک ہی ملاقات میں ڈھیر ہو گئے۔ چودھری نثار صاحب، مسلم لیگ سے وابستگی اچھی بات ہے، لیکن عدالت سے سزا یافتہ مجرم سے وابستگی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس اسٹیٹمنٹ کو بہت سنجیدگی سے لیا جائے، اور پاکستان کے خلاف جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اب پاکستان سے آوازیں بلند ہونی چاہیے، پاکستان کی اب کھل کے بولنا چاہیے۔ بہت ہو گیا، ایک وقت ہوتا ہے، ایک دور ہوتا ہے برداشت کی انتہا کی، اب بہت ہو گیا ہے۔ ہر وقت پاکستان توڑ دینا، پاکستان ختم کر دینا، پاکستان مٹ جائے گا۔ پاکستان کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، پاکستان کی تباہی کا خواب دیکھنے والے برباد ہو جائیں گے۔ یہ 27 رمضان المبارک کا تحفہ ہے، یہ 27 رمضان المبارک کی شان ہے۔ اب آپ کہیں گے پھر مشرقی پاکستان کیوں علیحدہ ہوا؟ اب یہ سوال کریں گے آپ، وہ 27 رمضان کو بنا تھا تو کیوں علیحدہ ہوا؟ فطرت کا تقاضا تھا، فطرت کا تقاضا تھا، فطری امر تھا، اور فطرت کے تقاضے اور فطری امر کے مطابق وہی ہوا جو قانون قدرت میں منظور تھا۔ لیکن یہ باقی ماندہ پاکستان جس طرح پھل اور پھول رہا ہے، یہی پاکستان ہے، اور یہ پاکستان قائم و دائم رہے گا۔ یہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو کوئی بھی بیرونی قوت، بیرونی سازش اور باہر بیٹھ کر بڑبونگیاں کرنے والا کوئی بھی دہشت گرد پاکستان کو ختم نہیں کر سکتا۔ جو نفرت بڑھا کر وطن بیچتے ہیں وہ اپنی ہی ماں کا کفن بیچتے ہیں، انہیں ہم یہ سودا چکانے نہ دیں گے۔ وطن تو نواز شریف کی نہیں ہے کسی کی تو ان کا نام عرفان صدیقی، ان کی اردو بہت اچھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی لکھی ہوئی پریس کانفرنس تھی، لیکن ممکن ہے کیونکہ وہ کالم نگار ہے۔ ویسے تو
मुमकिन है कि कल के जंग अखबार में मेरे बहुत प्यारे और बहुत मोहतरम हैं, बल्कि हमारे लिए तो उस्ताद का दर्जा रखते हैं जनाब साले जाफिर साहब, मुमकिन है कि कल के जंग अखबार में कुछ इस तरह खबर लगे। हमारे दोस्त हैं एक मंसूर साहिर साहब, उन्होंने उसमें कुछ इजाफा भी किया है। कुछ इस तरह लगे कि नवाज शरीफ साहब जब एहतिसाब अदालत में दाखिल हुए तो उनके साथ एक नूर का हाला भी मौजूद था, और उस नूर के हाले की मौजूदगी में इतनी चमक थी और इतनी नूरानी किरणें बिखरी हुई थीं कि जज समेत तमाम अफराद की आंखें चुंधिया गईं, और नामालूम समत से आने वाली खुशबू इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि इसे क्यों निकाला, इसे क्यों निकाला, इसे क्यों निकाला। ये तो एक नूरानी बुजुर्ग है जो अपने साथ खुशबू लेकर अदालत में आता है, जहां जाता है संदल सी खुशबू फैल जाती है, जहां जाता है वहां धूप की तमाजत में कमी हो जाती है, साए बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पाक वजूद है जिसके नफ्स ने कभी गुमराही की ही नहीं, और ये एक इंतहाई शरीफ नाम से ही नहीं बल्कि अपने काम से, अपने किरदार से, अपने अतवार से और अपने अजदाद के बयान के तौर पर भी ऐसा शरीफ इंसान न तारीख ने सुना, न देखा, न आसमान पे पाया गया, न जमीन पे उतारा गया। वही नवाज शरीफ जो कल एहतिसाब अदालत में पेश हुआ। मुमकिन है किस तरह की कोई खबर सुबह जंग अखबार में लग जाए, लेकिन नाअहल ने आज एक और बड़ी अजीब सी बात कही, और उस बात के दौरान पीछे बैठा हुआ एक सहाफी गिर पड़ा, मतलब कुर्सी से गिर पड़ा, मतलब वो जब्त नहीं ला सका, इतने सारे एक साथ, और इन तमाम बातों को नाअहल ने कहा कि ये असासे हैं मेरे। क्या असासे हैं, जरा सुनिए। काश मेरे असासे खंगालने वालों की नजर कुछ और असासों पर भी पड़ती जो मेरे सियासी अकाउंट में जमा है। पाकिस्तान के एटमी असासों का ऐलान किसने किया? पाकिस्तान को बंदरगाहों, मोटरवेज, हाईवेज, मेट्रोज, हवाई अड्डों, डैम्स और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के हर असासे पर किसका नाम लिखा हुआ है? लवारी टनल, कच्ची कैनाल, नीलम झेलम कोई मामूली असासे हैं? बिजली के कारखाने, और इतनी कम मुद्दत में ये कारखाने कोई मामूली असासा हैं? जी नाज़रीन मोहतरम, ये आवाज सुनी आपने, ये आवाज सुनी। मैं फिर दोबारा आपको सुनाता हूं, तवज्जो से सुनिएगा। यहीं पे बर्तन गिर पड़े, आदमी गिर गया, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये जो आपने काम किए ये असासे नहीं है। वतन की खिदमत असासा नहीं होता मियां साहब, कारनामा होता है, यादगार होती है, एसेट नहीं होता। एसेट इंसान हो सकता है, आप हो सकते हैं एसेट, वैसे तो नहीं है आप, लेकिन हो सकते हैं आप, असासा हो सकते हैं, लेकिन आपके किए हुए काम असासा नहीं है। वो आपके किए हुए काम वतन की खिदमत है। आप हर चीज को अपना असासा क्यों बनाना चाहते हैं? पाकिस्तान को भी कल को आप कह देंगे मेरा असासा है, तारीख बदलवा देंगे। अगर आप 2-3 मरतबा और रह गए वजीर आजम तो लिखा हुआ यही होगा कि बानी पाकिस्तान मियां मोहम्मद शरीफ थे, क्योंकि पाकिस्तान भी आपका असासा हो जाएगा, सब कुछ आपका असासा बन जाएगा। जरा सुनाइएगा दोबारा क्लिप। बर्तन गिर पड़े, आदमी गिर पड़ा, नॉन लिविंग थिंग्स गिरने लगी हैं। लिविंग थिंग्स की तो बात ही नहीं कर रहा, नॉन लिविंग थिंग्स ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। झूठ, बिजली मिली नहीं, कारखाने चले नहीं, महंगाई। टमाटर खरीदे आपने कभी? खरीदने चले टमाटर? आम खाएगा, आम की जगह पूछो आप, तो टमाटर खाएगा। टमाटर चले टमाटर खरीदने के लिए, पता चलेगा आपको टमाटर कितने का है, आपको टमाटर की कीमत का अंदाजा हो जाएगा। आपको तो पता ही नहीं होगा। टमाटर अब सिर्फ देखे जा सकते हैं, खरीदे नहीं जा सकते। इतनी आपने महंगाई कम की है। डॉलर की कदर को जितना आपने कदर पे पहुंचाया है, माशाअल्लाह,
वो किसी ने नहीं पहुंचाया। जितना आपने मईशत को नुकसान पहुंचाया है, जो आपके काफिले और जो आपके अखराजात हैं मियां साहब, किसको धोखा दे रहे हैं? कौन सी सर्विस, कौन सी ट्रेन, कौन से मंसूबे, कितने घपले हैं, कितनी दो नंबरियां हैं, ये सब वक्त के साथ साथ सामने आएंगी। वॉल्यूम 10 अभी बाकी है मियां साहब, उसमें बहुत कुछ बाकी है। जरा दोबारा एक क्लिप सुनाइएगा, आवाज लोग सुन लें कि कैसे एकदम चीजें गिरना शुरू हो। बिजली के कारखाने और इतनी कम मुद्दत में ये कारखाने कोई मामूली असासा है? ये मतलब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि चीजें गिर गई, चीजें ताब ना ला सकी मियां साहब, चीजें गिर पड़ी, धाड़ की आवाज आई और चीजें गिर गई। बहरहाल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई सर पैर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक फेस सेविंग थी। बहुत से सवालात के जवाबात आपको अवाम की अदालत में देने, अपना ही मजमा लगाकर अपनी ही तारीफें करने से कुछ नहीं होता मियां साहब। गैर जानिबदाराना मजमा होना चाहिए और फिर आपसे सवाल जवाब हो। आज आपने खुद अपने आप को इस मकाम पर पहुंचाया है और शायद आपके इल्म में ना हो कि अब आपकी साहबजादी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ शहजादी पाकिस्तान, प्रिंसेस ऑफ पाकिस्तान, मुगलिया खानदान की शान आन और बान मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा $70 मिलियन की करप्शन में मुलव्विस पाई गई हैं। कितनी मियां साहब? $70 मिलियन की करप्शन में मुलव्विस पाई गई हैं। और ये इस तरह से पाई गई हैं कि साबिक अमरीकी सदर थे बराक ओबामा, उनकी अहलिया थी मिशेल ओबामा, उन्होंने मरियम नवाज को पाकिस्तान में बच्चियों की तालीम के लिए $70 मिलियन दिए थे। $70 मिलियन यानी 700 करोड़ पाकिस्तानी रुपए ये दिए थे पाकिस्तान में बच्चियों की तालीम के लिए, जिसमें करप्शन का इंकिशाफ हुआ है। और इसके इल्जाम में मरियम नवाज के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आप कहते हैं एक पाई की, मैंने तस्लीम किया, एक पाई की तो की नहीं आपने करप्शन, अरबों की करप्शन है, अरबों की, अरबों के साथ मिलकर अरबों की करप्शन आपने की है, अरबों के साथ मिलकर अरबों की करप्शन आपने की है, कतरी के साथ मिलकर, कतरी। तो दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मरियम नवाज इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रही हैं, इसलिए उनके खिलाफ फंड्स में खुर्द बुर्द की तहकीकात की जाएं। और सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए केस की समाअत कायद मिल्लत लियाकत अली खान की शहादत वाले दिन मुकर्रर की है, यानी 16 अक्टूबर को मुकर्रर कर दी है। और अटॉर्नी जनरल से तालीमी प्रोग्राम के हवाले से जारी होने वाले फंड्स की तफसीलात तलब कर ली हैं। 700 करोड़ रुपए की करप्शन आपकी साहबजादी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा उन्होंने की है। तो ये आपका खानदान है और अभी बहुत कुछ सामने आएगा मियां साहब, जरा थमिए, अब जरा कीजिए। अब चूंकि आपने जंग छेड़ ही दी है, छेड़ चुके हैं अब आप जंग, आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं, ये सिर्फ आप जानते हैं, शायद आपके बहुत सारे रुफका ना जानते हो, लेकिन आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। अब आपने जंग छेड़ी दी है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान नवाज शरीफ का नाम नहीं है, पाकिस्तान आमिर लियाकत हुसैन का भी नाम नहीं, पाकिस्तान बोल चैनल का भी नाम नहीं है, और पाकिस्तान नीले पीले का भी नाम नहीं। पाकिस्तान नाम है एक कौम का, कौम से मुल्क बनता है, और उस कौम को जो दुख और दर्द आपने दिया है मियां साहब, और वो दर्द आपने दिया है फौज से निबर्दाजमा होकर, अदलिया से निबर्दाजमा होकर, आपने इस पूरी कौम को दर्द में मुब्तला किया है। पाकिस्तान की अदालतों पर कौन एतमाद करेगा जिस तरह आप अदलिया का मजाक उड़ा रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। पाकिस्तान की फौज पर कौन तकिया करेगा जिस तरह आप कभी खुलकर कभी छुपकर
साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। कौन करेगा? क्या पैगाम दे रहे हैं आप सरहद पार अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को? क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या बताना चाहते हैं आप? लेकिन वो होगा नहीं मियां साहब जो आपकी ख्वाहिश है। आप कंप्लीटली जंग की पोजीशन में हैं और आप जंग लड़ना चाहते हैं और उसके लिए आप मार्च का इंतजार कर रहे हैं। नॉन सीरियस गवर्नमेंट है, इंतहाई गैर संजीदा हुकूमत है, और मैं इसको साबित कर सकता हूं खाकान आजम का आपको क्लिप दिखाकर। इससे ज्यादा गैर संजीदगी क्या होगी? सहाफी सवाल कर रही है खातून एक अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के बाद, यानी उनके खिताब के बाद, या शायद उनके खिताब से पहले, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन गैर संजीदगी आप देखिए। जवाब देना चाहिए था बड़ा करारा, सवाल बड़ा अहम था कि अफगानिस्तान में आप भारत के किरदार को किस तरह देखते हैं, इसका जवाब देना चाहिए था। तो उसका जवाब कैसे दे रहे हैं? हंस रहे हैं। आप मलिहा लोधी की तरह जवाब दे सकते थे। मलिहा लोधी ने जिस तरह पाकिस्तान की इज्जत का पास रखा है, आप उस तरह भी जवाब दे सकते थे। लेकिन खाकान आजम आपने इस तरह जवाब नहीं दिया, क्योंकि आप भी तो बॉस हैं, आप भी तो माफिया खानदान के बहुत चहीते फर्द हैं, तो आप भी वैसे ही हो गए हैं। जरा देखते हैं कि आपने क्या किया। Masuda Sultan, Insight Group. I was wondering, you talked a little bit about the role of India, the way that the Trump administration sees it. I was just wondering what you think the role of India should be in Afghanistan. Zero. जीरो। ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये वजीर आजम का अंदाज होता है? तो किसी क्लर्क का अंदाज लग रहा है। जवाब देने का मौका मिला था, खुलकर जवाब देते, बताते कि अफगानिस्तान में क्या कर रहा है भारत, क्या किरदार होना चाहिए और क्या कर रहा है वो बताते। क्या बताएंगे? वक्त गुजार रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास। मार्च तक सब टाइम पास कर रहे हैं, या तो कोई तरमीम पास कर रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं। और मगर वो होगा नहीं। कुछ तो हम भी जानते हैं मियां साहब, थोड़ा सा वो होगा नहीं जो आप चाहते हैं। जो आप चाहते हैं वो नहीं होगा, और जो कौम चाहती है वो जरूर होगा, जरूर होगा। फिल वक्त तो मैं आपको जनाब कमर बाजवा साहब का स्टेटमेंट सुनवा रहा हूं। नाज़रीन मोहतरम, कमर बाजवा साहब का चेहरा देख लीजिएगा आप, उनका लहजा देख लीजिएगा और अंदाजा लगा लीजिए कि समंदर पार से आने वाले दहशतगर्द के बयान को फौज ने कितनी संजीदगी से लिया है। पाकिस्तान की आर्मी ने, दिफाई इदारों ने बहुत संजीदगी से लिया है, कोई मजाक नहीं है। हर बयान के बाद यह नहीं कहा जाएगा कि जहनी हालत ठीक नहीं थी, हम भी कहा करते थे कभी। हर बयान के बाद नहीं कहा जाएगा। हम तो आज भी जो बात कही थी उस वक्त तक यही कही थी कि शायद सही हो जाए। डॉक्टर का काम यह है, डॉक्टर लियाकत मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हुए डॉक्टर का काम यह है कि आखिरी वक्त तक मरीज का इलाज करे। लेकिन जब मरीज पागल हो जाए तो डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ देता है। आइए आपको कमर बाजवा साहब का मैं स्टेटमेंट सुनवाता हूं, लहजा भी सुन लीजिए, अंदाज भी सुन लीजिए, और देख लीजिए कि अरसलान आलम की शहादत के बाद उनके चेहरे पर कर्ब, तकलीफ। पहले ही वो कह चुके हैं कि अगर कोई एक भी जवान शहीद होता है तो मुझे लगता है मेरा बाजू कट गया है। बहुत संजीदगी के साथ वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर कोई इस वक्त मुल्क में संजीदा तरीन आदमी है जो सरहदों की हिफाजत कर रहा है और जिसके पीछे पूरी फौज खड़ी है, उसका नाम है कमर बाजवा। अब आप मुझे कहेंगे बूट पालिश या पैसे लेता है फौज से, फौज का आदमी है, कहते रहे।